Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the physics class. Again, we are going to discuss about another topic of the same chapter, thermal properties of matter. Today, we are going to discuss about the topic named as latent heat of fusion. That what is latent heat of fusion? Before describing this topic, I would like to explain that what actually the fusion is. Uh, हम फ्यूजन को मेल्टिंग के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेल्टिंग दैट व्हाट इज मेल्टिंग मेल्टिंग हम किसे कहते हैं उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर मेल्टिंग दैट व्हाट इज मेल्टिंग मेल्टिंग हम किसे कहते हैं व्हाट इज मेल्टिंग when a substance in solid state changes to liquid state. It means that when we have a solid substance, the solid substance wants to change in the liquid state. Then what would happen? That we have to give some amount of heat to the solid state. When we give some amount of heat to the solid state, then solid state of matter is being converted into the liquid state. When solid is converted into the liquid state, that is called melting. Simply, that is called melting. Remember this one, that when melting occurs, whenever the melting occurs, the temperature of substance does not change. Remember this point, that whenever the melting occurs, the temperature of substance does not change. The temperature of substance does not change, but what would happen? But the state is going to change. The state is going to change. The temperature of substance does not changes, but the state of substance changes. It means that the solid structure or the solid substance is being converted into liquid state. But when the melting occurs, the temperature occurs, then at this point, at melting point, the amount of heat is given, to the solid substance, but the solid substance only absorbs amount of heat, does not increase the temperature and does not change the temperature. So melting is what, that when solid changes into liquid by giving some amount of heat, and at melting the temperature of substance does not changes. The temperature of substance does not changes in this case. Okay. Now moving towards that what is called latent heat of fusion. This is a definition of melting, that what actually happens in melting state. Now going to discuss about latent heat of fusion. I just wanna divide the concept latent heat of fusion in some words. The word latent means hidden. Remember this out, that the word latent means hidden. The word latent means hidden. And amount heat, you actually know that what actually the heat. And the word fusion. Fusion is some case used for melting. Here we used fusion as a concept of melting. It means that in this heat or in this process, the solid is going to change into the liquid state. सॉलिड किस में चेंज होगा? लिक्विड स्टेट में चेंज होगा. तो जो हम अमाउंट ऑफ हीट देने वाले हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट के कॉन्सेप्ट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में डिस्कस करेंगे. सो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा? whenever the solid is going to change, whenever the solid is going to change in what? Change in into liquid. जब solid liquid में change होगा, तो वो कॉन्सेप्ट हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए पहले थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे हम कहते हैं. हम कह रहे हैं कि वी हैव अ सॉलिड सब्सटेंस लाइक टेक द आइस. हम आइस को ले लेते हैं कि हमारे पास आइस है, और उस आइस का जो अमाउंट हम ले रहे हैं, वो अमाउंट हम ले रहे हैं यूनिट मास. We have ice and the amount of ice is unit. What we mean by unit mass? Unit mass may be 1 kilogram, unit mass may be 1 gram, unit mass may be 1 ton. It means the unit of mass is considered to be any unit. It may be in kilogram, it may be in grams, or it may be in tons, but the amount is always considered to be unity. हम amount उसका हमेशा unity ही consider करेंगे. unity का मतलब क्या होता है? unity का मतलब होता है 1. सो हमारे पास आइस मौजूद है, और आइस का हमने अमाउंट लिया है यूनिट मास.
तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक बीकर है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या रख दिए, आइस क्यूब्स रख दिए, उस कंटेनर के अंदर हमने आइस क्यूब्स रख दिए। अब क्या होगा कि हम इस आइस क्यूब्स का कोई ना कोई इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं, और उसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर की नीड होगी। तो हम यहाँ पर इसके अंदर एक थर्मामीटर फिक्स करेंगे, इस आइस क्यूब्स के अंदर थर्मामीटर फिक्स करेंगे, और लेट सपोज हमें जो इनिशियल रीडिंग मिली है आइस की, वो इनिशियल रीडिंग कितनी मिली है, वो इनिशियल रीडिंग मिली है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स इट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस। हमने जो आइस ली उसका टेम्परेचर हमें -30 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। अब क्या होगा, हमें कहा गया कि हमने इस सॉलिड को कन्वर्ट करना है, इस आइस को कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, दैट इज इन वाटर। तो हम आइस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वाटर की स्टेट में। तो हम क्या करेंगे, हम अमाउंट ऑफ हीट देंगे। जब हम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, सो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अमाउंट ऑफ हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो इन द स्टार्टिंग इट्स टेम्परेचर बाय गिविंग सम अमाउंट ऑफ हीट, इट्स टेम्परेचर बिकम्स -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर बढ़ गया। उसके बाद अगेन फिर हीट देते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मजीद टेम्परेचर बढ़ा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगेन हम हीट सप्लाई करेंगे तो और ज्यादा मजीद टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका टेम्परेचर पहुंच गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ आइस बिकम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक मखसूस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, इस टेम्परेचर पर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। आइस क्या होना चाहेगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी। यानी ऐसे समझ लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिक्सचर मौजूद होगा। किसका मिक्सचर मौजूद होगा, मिक्सचर मौजूद होगा आइस एंड वाटर का, आइस प्लस वाटर का मिक्सचर मौजूद होगा। अब होगा क्या कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें जो आइस मिलेगी, उस आइस में वाटर भी मौजूद होगा, और वहां पर आइस का भी कुछ अमाउंट मौजूद होगा इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जब मजीद अमाउंट ऑफ हीट देंगे, तो वो मजीद अमाउंट ऑफ हीट आइस क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। वो मजीद अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगी, आइस एब्जॉर्ब करेगी। जो हम अमाउंट ऑफ हीट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे, अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, तो आइस क्या करेगी, आइस उस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और जैसे जैसे एब्जॉर्ब करती जाएगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि स्टेट चेंज होती जाएगी। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आइस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वाटर स्टेट। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस कन्वर्ट होना चाहेगी लिक्विड स्टेट में, यानी वाटर की स्टेट में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक मखसूस पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्यूजन पॉइंट, या इस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मेल्टिंग और फ्यूजन इज हैविंग अ सेम कॉन्सेप्ट, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो फ्यूजन भी हम इसको कह सकते हैं या मेल्टिंग भी कह सकते हैं। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा बाय द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कि अपनी स्टेट चेंज करना चाहेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी ना एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम यूनिट मास ऑफ आइस को दे रहे हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहा जाता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको ऐसे समझ लें कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर आइस मौजूद थी, और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएंगे तो इस पर आइस भी मौजूद होगी और कुछ वाटर भी मौजूद होगा। तो क्या करेगा कि हम जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे वो एब्जॉर्ब करेगा अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, लेकिन उसका टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए नहीं बढ़ाएगा। और जैसे ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या उससे बढ़ गया, तो इट इज बीइंग टोटली कन्वर्टेड इनटू द वाटर, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी फिर। तो इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट वी कॉल्ड इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। So let us discuss now about the graph of latent heat of fusion. Latent heat of fusion के ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने वही सेम सपोजिशन ली थी कि हमारे पास एक वेसल है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने आइस क्यूब्स रख दिए हैं, और उस आइस क्यूब्स का जो इनिशियल टेम्परेचर हमने रखा था वो रखा था -30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इफ वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम, हम टेम्परेचर और टाइम के दरमियान में
ग्राफ ऑब्टेन करना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें, तो जो आइस का इनिशियल टेम्परेचर था, पहले स्टार्टिंग में टेम्परेचर वो था -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर को हम मैयर करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड्स में और टाइम को हम लेट सपोज मैयर कर रहे हैं सेकेंड्स में। अब क्या होगा कि जब हम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे थे तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने शो करवाया कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता जाएगा, -30 से वो हुआ -20, उसके बाद -20 से वो हुआ -10 के बराबर। ऐसे करते करते टेम्परेचर कहाँ तक राइज हो गया, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर गया तो रिमेंबर दिस वन दैट दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन पॉइंट। इसको हम आइस की क्या कहेंगे, मेल्टिंग और फ्यूजन पॉइंट। मतलब कि इस पॉइंट पर आइस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ टाइम के लिए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हमने हीट ऑफ फ्यूजन कहा था। व्हेनेवर हीट इज गिवन टू द सब्सटेंस द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा यानी ग्राफ ऊपर की तरफ बनता जाएगा। अब कुछ अमाउंट ऑफ हीट के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो क्या करेगा, वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टेम्परेचर को सेम रखेगा। टेम्परेचर को लेट सपोज उसने सेम रखा, उसके बाद क्या होगा, जब वो मुकम्मल मेल्ट हो गया, मुकम्मल बर्फ, मुकम्मल आइस पिघल गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो उसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास क्या मौजूद थी, आइस मौजूद थी। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास क्या मौजूद था, आइस प्लस वाटर। यहाँ पर हमारे पास आइस भी मौजूद था और वाटर भी, यानी कि आइस और वाटर दोनों कंबाइंड थे। लेकिन ये जो ऊपर वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मिला। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हीट ऑफ फ्यूजन हम किसे कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, लेटेंट ऑफ फ्यूजन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, amount of heat absorbed. अच्छा, it's not only valid in the case of ice, but it is valid for all materials of solid. सब solid के जितने materials हैं उनमें ये valid है। तो amount of heat required, amount of heat required to change, required to change the state of, required to change the state of unit mass of substance, unit mass of substance, kindly remember this out कि unit mass हम किसे कहते हैं, it is considered to be 1 kilogram, maybe 1 gram, maybe 1 ton। amount of heat required to change the state of unit mass of a substance विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर रिमेन सेम विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे तो वो अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और kindly remember this one that when we are dealing with fusion or melting, then the state should be converted into solid to liquid. But if we wants to convert liquid to solid, we must go through the freezing concept। हमें freezing concept के लिए जाना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि किसी भी substance का जो freezing point होती है किसी भी substance की, वही उसकी melting point होती है, लेकिन state slightly change होती है। मेल्टिंग में हम सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहेंगे और फ्रीजिंग में हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं। सो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमने क्या कहा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वैलिड है वो हमारे पास यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के लिए वैलिड है। उसको आप 1 किलोग्राम भी कंसीडर कर सकते हैं, 1 ग्राम भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस यूनिट मास को 1 किलोग्राम में कंसीडर कर रहे हैं, सो वी जस्ट रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन मैथमेटिकल टर्म्स। मैथमेटिकल टर्म्स में हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को लिखते हैं HF। HF का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके बराबर होती है, डेल्टा क्यू। जो हम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे थे, किसको अमाउंट ऑफ हीट दे रहे थे, बाय यूनिट मास।
यूनिट मास मतलब डिवीजन वाले फॉर्मेट में हम उसको लिखेंगे. So HF is equal to delta Q divided by M. And if we want to find SI unit, the delta Q का SI unit होता है amount of heat यानी joule divided by mass किलोग्राम. तो joule पर किलोग्राम या हम इसको joule किलोग्राम इनवर्स भी कह सकते हैं. डेल्टा क्यू एच एफ के बराबर हो सकता है, यानी कि जो हम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे थे उसी को हम एच एफ के बराबर कर सकते हैं, लेकिन तब एच एफ के बराबर करेंगे जब मास को हम क्या कंसीडर करें, 1 किलोग्राम कंसीडर करें. देखें एच एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास. अगर मास की जगह पर हम 1 किलोग्राम कंसीडर करें तो एच एफ किसके बराबर हो जाएगा, एच एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू के. यानी अमाउंट ऑफ हीट जो हम देते हैं सब्सटेंस को स्टेट चेंज करने के लिए वही एच एफ होती है, लेकिन वही हीट ऑफ फ्यूजन तब होगी जब हम सब्सटेंस का मास कितना कंसीडर करेंगे, 1 किलोग्राम कंसीडर करेंगे. Hope so that you got the concept about latent heat of fusion. That's all, and we shall continue the next topic on latent heat of vaporization.